तो जल्दी से हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। ये 2.35 का बाद में आप खुद प्रैक्टिस करना। तो जैसे ये फाइंड पेरीमीटर व्हेन गिवन साइड लेंस दी हुई है, यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। तो ये फर्स्ट वाला इजी है। उसके बाद है फाइंड ए मिसिंग साइड लेंथ व्हेन पेरीमीटर इज गिवन। इसको इसको ट्राई करते हैं। We will just do one question each, then we'll move forward to the next exercise. अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, find a missing length when given perimeter। अब आपको पेरीमीटर गिवन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है the regular pentagon below has a perimeter of 55 centimeter. What is the length of one side of the pentagon? How will we calculate, Shabash? Who will tell me? This is very simple. जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ। 11 will be the answer. Huh? 11. 11. Yes. Yes. So how did you find 11? Sir, जरा ट्रिक लगाई, 11 into 5 is equal to 55 ऐसा. So that means here you can divide. Yes, sir. So 55 divide by total number of sides. Total number of sides कितना है? Because it is a pentagon, that means it has 5 sides. So you divide total perimeter, जो total length है, that is given. So 55 divided by 5, you will get 11 centimeter. So each side is 11 centimeter. This is 11, this is 11, this is 11. Okay. So we write 11 and then we check and go to the next question. So similarly ये भी है, इसमें है a square is perimeter 48 है. What will be the length of one side? जल्दी से बताओ संजना, बताओ क्विकली, टू क्विकली आंसर, फिर नहीं तो हम बहुत स्लो चलते हैं क्लास में। स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का कितने साइड्स होते हैं? 4 sides. Total perimeter is 48. So each side will be 48 divided by 4, which is 12. So this is your second exercise, this one. Now let us do the third one. We will quickly do these exercises because last time I did not assign these exercises. क्या लिखा है? Which of the following expressions? अब यहाँ पे आपको options में some expressions are given. Which of the following expression can be used to find the perimeter of the shape? And now this is your shape. So which expression can you use? और क्या लिखा हुआ है? You have to choose 2 answers. बताओ शाबाश। युक्ति, you try. Yes. Choose 2 answers. You have to find the perimeter of this shape and then you have to find
You don't have to calculate, you just have to answer कि इनमें से out of these expressions which expression can be used to find the perimeter. Who will give me the answer? विशाल, आप बताओ. जब जिसका नाम लूंगा जल्दी से माइक ऑन करना चाहिए और बताना चाहिए आ रहा है नहीं आ रहा है. ओके सर. हाँ बताओ. सर बी. मैं विशाल से पूछ रहा हूँ, विशाल बताओ. सर हाँ सर इसका सर डी. डी. यस सर. And because you have to choose two answers. D is correct. 14 multiplied by 20. Huh? Sir, Option A. A. Yes sir. क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना 14 plus 14 that means 2 times 14. 20 plus 20 that means 2 times 20. So expression ये भी correct है और ये भी correct है. Both will give you perimeter of this figure. The length of each side is 8 units. What is the perimeter of this star? Who will try? Come on, be quick. संजना, आप ट्राई करो. जो जल्दी से माइक ऑन करेगा वो बताएगा. बताओ, शाबाश. खुशबू, आप बताओ. ये तो इतना इजी है, फटाफट आंसर आने चाहिए. यस सर. हाँ बताओ. सर 80. 80 कैसे किया? शाबाश शाबाश, बताओ. How did you calculate? The length of each side of the star is 8 unit. So this star has the sides. There are 10 sides. So I multiply 8 by 10. Okay, let us see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. So 8 multiplied by 10 is 80. ये तो इतना इजी है, सबको फटाफट जवाब देना चाहिए. ये भी बहुत इजी है. You just have to add. Now you simply add. क्योंकि ये regular, it is not regular. Regular means all side. When all sides are equal, then we call that shape regular. ये regular नहीं है, so you simply have to add 5 plus 4 plus 5 plus 4 plus 4. 22 centimeter. 22 centimeter. Yes sir. Very good. Next, what is the perimeter of the pentagon? और पेंटागन का क्या दिया हुआ है? One side. अब देखो यहाँ पे वर्ड रेगुलर आ गया. One side of a regular pentagon is 7 units. तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? Regular means equal sides. बताओ, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी. अब अगर कोहूट खेल रहे हो गेम तो आपको फास्ट आंसर देने हैं. ये मान लो कोहूट ही है, आपको तो जल्दी से आंसर देना है. क्या आंसर होगा? बताओ आदर्श. One side of regular pentagon is 7 units. What is the perimeter of the pentagon?
Sir, 35. हाँ, क्योंकि पेंटागन है, दैट मीन्स 5 साइड्स, और एक साइड 7 है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35। तो इतना सिंपल है। अब लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, अब नेक्स्ट कौन बताएगा? राजवीर, आप बताओ। शाबाश, बताओ राजवीर। रेगुलर हेक्सागन हैज पेरीमीटर ऑफ 36 मीटर। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, सो P is given and you have to find length of one side. हाँ बताओ आदर्श। Sir, 6. So this is hexagon. Hexagon means 6 sides. और टोटल पेरीमीटर 36 दिया है, तो एक साइड का कितना होगा? 36 डिवाइडेड बाय 6। एक मिनट में आ रहा हूँ, जस्ट होल्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सब उन्हें फटाफट आंसर देना है। तो इसका कितना होगा? 6। चलो, अब ये तो इजी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड? मिसिंग साइड, तो यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ, एंड पेरीमीटर दिया हुआ है। ये तो इजी है, आप सब उनको ऐड कर लो और 24 में से माइनस करेंगे, यू विल फाइंड दिस। जो मिसिंग है उसको आप x, यू कैन कीप इट x, तो यू विल फाइंड x। Ma'am, sir, 9. 9. Okay, so let us do next exercise. Now this is 2.35, ये हमने कर लिया। Next is perimeter word problems. Now let us try to understand the word problems related to perimeter. तो ये वाली एक्सरसाइज देखते हैं, किस टाइप की एक्सरसाइज है। क्या लिखा है? Lulu has exactly enough fencing to go around her rectangular garden. So उसके पास कैसा गार्डन है? Rectangular. And she has enough fencing. फेंस लगाना है गार्डन में। She has 40 meters of fencing. The garden is 8 meters wide. What is the length of her garden? Sir, 32 meters. नहीं, रेक्टेंगुलर है ये शेप, देखो रेक्टेंगुलर शेप है, और इसका पेरीमीटर कितना है? उसने जब उसने पेरीमीटर, जब उसने फेंस लगाना है, तो फेंस कहाँ पे लगाएगी? वो उसके बाउंड्री पे। और फेंस का टोटल लेंथ क्या है? 40 मीटर। दैट मीन्स यहां से यहां, फिर ऐसे, फिर ये वापस, और फिर यहां। दैट मीन्स जो टोटल पेरीमीटर है, दैट इज 40 meters एंड 8 meters वाइड विड्थ। तो 8 meters अगर ये है, तो ये भी 8 meters होगा।
रेक्टेंगल है ना, सो बोथ आर 8 meters. अब बताओ कितना आएगा. अब लेंथ, यू हैव टू फाइंड द लेंथ. हु विल ट्राई? So 24. नहीं, 24 लेंथ. कैसे लेंथ 24 कैसे होती है फाइंड? Sir 8 plus 8 8? करेंगे. हाँ, 8 plus 8 हो गया 16. ओके, Plus 40 करेंगे. 40 तो टोटल पेरीमीटर है. तो अगर आप 40 में से माइनस करोगे 16 तो कितना मिलेगा आपको? 24. तो ये 24 क्या होगा? ये तो ये वाला एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है, यानी कि 2L, 2 multiplied by length, twice the length will be equal to 24. Therefore, L will be half of it. 24 divided by 2. 12. तो ये पहले आपको साथ साथ में जल्दी से ड्रॉ करना चाहिए. जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वो समझना चाहिए कि क्या दिया हुआ है. अगर आपको पेरीमीटर दिया है और साथ में रेक्टेंगुलर गार्डन भी दिया है और साथ में वाइड 8 मीटर वाइड दिया है, यानी कि ये विड्थ दिया हुआ है. और अगर विड्थ दिया है दैट मींस यहाँ पे भी 8 है, ये भी 8 है, एंड टोटल इज 40 meters. सो ऑब्वियसली पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? L plus L plus W plus W. ये दोनों W तो 8 plus 8 है, ये L मालूम नहीं है, सो L plus L means 2L and perimeter is 40. So you have to always find an equation. एक इक्वेशन बनाना है आप लोगों को. जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे, मैं बार बार आपको समझाता हूँ. हाउ कैन यू सॉल्व? यू डिवाइड को गिवन, एक साइड पे लिखो फाइंड, फिर जो जो आपको दिया हुआ है उसको हेलो, सुनाई दे रही है आवाज? Yes, sir. सो उस जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से यू शुड फाइंड एन इक्वेशन, और जो फाइंड करना है लेट दैट बी इक्वल टू x. और यहां इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहां से मिलेगी? जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है, इस गिवन इंफॉर्मेशन से यू शुड राइट एन इक्वेशन एंड फ्रॉम इक्वेशन यू शुड फाइंड x. ऐसे आपको सॉल्व करना चाहिए ऑल द प्रॉब्लम्स. लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन. So this is 12. अब क्या लिखा है? जूलिस. ठीक, ये नाम है, इनको भूल जाओ. मान लो जे. Julius adds a border around his mirror. The mirror is shaped like a triangle. Now, the mirror is shaped like a triangle. Each side, जब each side लिखा है, that means हर एक side is 35. So this is 35, this is 35, this is 35. How long is the border? तो बहुत easy है.
अब ये अगर मिरर है आपका, आपको बॉर्डर कहाँ पे लगाना है? बॉर्डर तो इस पे, इसके पेरीमीटर पे लगाना है. Sir, 105 centimeters. So you have to add 35 plus 35 plus 35. और जब आप when you do repeated addition को ही हम multiplication कहते हैं, तो आप 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. 1 meter 5 centimeter. हाँ, 105 centimeter, because you have to write only centimeter, so you will write 105. अगर आपको ऐसे दिया होता डैश मीटर and dash centimeter, then you could have said 1 meter and 5 centimeter. लेकिन ऐसे तो नहीं दिया है, fill in the blanks में एक ही यूनिट है, सेंटीमीटर, so you have to write 105. अब देखो क्या लिखा है. Rob plans to build 3 tennis courts in a local park. अब रॉब क्या प्लान कर रहा है? 3 टेनिस कोर्ट्स बनाने का. He will build a fence around the whole area. अब ये इस फेंस कहां पे लगेगा? इस पूरे एरिया में लगेगा. How much fence will Rob need? बताओ जी. अब आपकी इसकी शेप से पता चलना चाहिए. इस शेप से आपको फाइंड क्या करना है? इसका फेंस कहां पे फाइंड कर, फेंस कहां पे लगेगा? अराउंड द होल एरिया, उसके इर्द गिर्द, यानी कि यहां से फेंस लगाएगा वो अराउंड द एरिया, इस पूरे के इर्द गिर्द यहां. That means you must be knowing this. You should know this length. You should know this length, and this length. अब ये 3 रेक्टेंगल्स है. अगर ये 12 है तो ये इसका अपोजिट साइड भी 12 होगा. ये 24 है तो इसका अपोजिट 24 होगा. अब देखो ये इक्वल साइड्स के हैं कोर्ट, ये जो टेनिस कोर्ट है. अगर ये 12 है तो ये वाला हिस्सा भी 12 होगा. तो ये वाला हिस्सा भी 12 है. ये हिस्सा यहां से यहां तक 24 है. तो इसका ये वाला हिस्सा कितना है? ये भी 12 होना चाहिए. और ये इसका 24 होना चाहिए. और ये इसका 12 होना चाहिए. अब नाउ यू कैन ऐड देम अप. अब इनको आप ऐड कर सकते हैं. Sir, इसको add. हाँ, ऐड करो जल्दी से. या तो देखो इनके अपोजिट साइड 24 प्लस 24 हो गया 48. फिर ये 12 एंड 24 इज 36. यहाँ 36 है, यहाँ भी 36 है. 36 एंड 36 इज 72. अब इन दोनों को मैं 2 is 10, 5 plus 7 is 12. So 120 मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया हुआ है. So 120 मीटर्स का उसको क्या चाहिए? फेंस. तो आंसर विल बी 100. ठीक है. तो ये तो हो गया एक्सरसाइज 2.36. आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर करना चाहते हो. नाउ लेट्स कम टू एरिया. सो 2.545 इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स. एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो सबको मालूम है ना क्या होता है?
Length into breadth. लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ और विड्थ। तो ये आप लोग खुद कर लेना। 2.45 के देखो कितने सारे एक्सरसाइजेस हैं, 4 एक्सरसाइजेस। इसमें मिसिंग लेंथ भी फाइंड करना है, और फिर ये जैसे मिसिंग लेंथ का एक क्वेश्चन करते हैं इसका। लेट मी शो यू वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस। देयर आर 4 लिंक्स, ये 4 लिंक्स हैं, 1 2 3 4। तो सारे लिंक्स की खूब प्रैक्टिस करो आप जब भी टाइम मिले। अब जैसे ये सेकंड लिंक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड है मिसिंग लेंथ। आई जस्ट शो यू। अब नाउ जैसे लास्ट एक क्वेश्चन में हमने देखा, लास्ट एक्सरसाइज में आपको पेरीमीटर दिया था और आपको लेंथ फाइंड करनी थी। अब इस केस में क्या है, गिवन एरिया, अब एरिया दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ। अब जैसे यहां पे लिखा है दिस रग, एक रग होता है ना कारपेट सा, ये ग्रीन कलर का मान लो कारपेट है, एंड एरिया ऑफ 24 स्क्वायर मीटर। तो इसका एरिया कितना है, एरिया ये वाला है, अंदर वाला एरिया 24 स्क्वायर मीटर, और लेंथ जो दिया हुआ है, तो दिस इज गिवन। अगर आप यहां पे ड्रॉ करोगे, दिस इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड विड्थ। विड्थ आपको फाइंड करना है। आपके पास क्या दिया हुआ है, एक तो एरिया दिया है 24 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ is given as 6 meter. So what will be W? Both easy है। Sir, 4 हाँ 4 होगा। by 24. हाँ, तो क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब आपको एरिया दिया हुआ है, तो इक्वेशन व्हाट विल बी इक्वेशन, सो यहाँ पे अंडर गिवन आपको एक इक्वेशन फाइंड करना है, एक इक्वेशन बनाना है, खुद बनाना है। जैसे आपको जो फाइंड करना है, आपको फाइंड W करना है, विड्थ, तो विड्थ को आप x लिखना चाहिए। तो यहां इक्वेशन बनाओ आप, इक्वेशन ये वाली है, एरिया 24 है, लेंथ 6 है ये, और WX है। अब ये इक्वेशन से यू कैन फाइंड द x। तो इस 6 को यहां ले जाएंगे, दिस विल बिकम 24 डिवाइडेड बाई 6 विच इज 4। तो दिस विल बी 4 meters। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद करना। अब इसका इस वाले का एक देखते हैं, लेट्स ट्राई दिस वन, या इसका देखते हैं पहले 10 पॉइंट, ये जो है ये वाला देखते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखो क्या कह रहा है, ईच, अब ये ग्रिड बनाया हुआ है, ईच स्क्वायर इन द ग्रिड इज 1 by 1 centimeter square। दैट मीन्स ईच, ये जो स्क्वायर है that is 1 centimeter by 1 centimeter। You have to find the area of this shape। कितना होगा इसका एरिया इस शेप का? Sir, 90. 1, 2, 4, 5, 6. Sir, 12. ये तो जितने जितने स्क्वायर्स हैं उतना ही एरिया होगा। ये दिस इज 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतना इजी है। तो दिस विल बी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो ऐसे ही करके आप ये ट्राई टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है. देखो अगेन दिस इज वेरी सिंपल. So 13. 13th. चलो Yes. 13 लिख लेते हैं. So 12. हाँ. So these are very simple ones. अब let us try this one. Next one. ये भी बहुत इजी है. Which of the following rectangles have an area of 24 square meters? Option A. और क्या लिखा है? Choose two answers. Sir, D वाला एक. 24 तो B है, और भी होगा कोई? और D sir D. है? D. D भी है, क्योंकि यहाँ पे है 6 and 4 तो 24 हो गया, और 8 into 3 ये भी 24 हो गया. So you will do all these questions. 2.45. Now let us do this. अब ये कह रहा है decomposing figures to find area. Decompose मतलब उनको तोड़ना, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना. अभी हम देखते हैं इस 2.46 का, देखते हैं फर्स्ट वाला देखते हैं. अब यहाँ पे, अब ये छोटे स्क्वायर, यहाँ ये जो छोटा स्क्वायर है दैट इज नहीं, ईच स्मॉल स्क्वायर हैज साइड लेंथ ऑफ 1 मीटर. तो ये जो स्मॉल आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे, ये जो छोटे हैं ना, इनका 1 मीटर है. तो इसका एरिया, अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है. कैसे एरिया फाइंड करोगे बताओ? एरिया मीन्स ये पूरे का, ये जो बीच वाला है. अब इसकी शेप क्या है, कौन मेरे को बताएगा शेप? शाबाश. Sir stair. स्क्वायर कहाँ है? स्क्वायर तो ये है, इसीलिए हमको. हाँ? Sir 49. कैसे 49 कैसे किया? एक एक स्क्वायर को ऐड किया. Yes sir. हाँ, तो पहले इसको आप डिकम्पोज करो, क्योंकि अगर एक एक स्क्वायर को ऐड करोगे बहुत टाइम लगेगा. तो हम इसको, ये जो शेप है, वी विल डिकम्पोज, वी विल ब्रेक इट इनटू, ब्रेक करना, डिकम्पोज. लिखो वर्ड डिकम्पोज. Decompose means to break. अब इसको हम ब्रेक करेंगे. एक हम इसको, अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, तो ये मेरा स्क्वायर बन गया. क्यों स्क्वायर बन गया? क्योंकि ये 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 and 3. फिर ये रेक्टेंगल बन गया. इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6. सो दिस इज 6 यूनिट्स, 6 मीटर्स. और इसकी विड्थ कितनी है?
1 2 3 4 4। 4 तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। सर और इस एरिया, इस स्क्वायर का कितना होगा? 9 तो टोटल एरिया कितना होगा? 19 19 कैसे होगा? इन दो को ऐड करना है। 24 प्लस 9 इज 33. So 33 correct answer is 33 स्क्वायर मीटर, 49 नहीं है। आपने पता नहीं कैसे कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 33। अब बताओ। अब देखो यहाँ पे लिखा है द फिगर बिलो इज मेड ऑफ 2 रेक्टेंगल। दैट मीन्स ये जो शेप है इसको आपने डिकम्पोज किया या ब्रेक कर लिया इनटू 2 शेप्स। वन इज दिस रेक्टेंगल and the other is this rectangle. अब ये इसका 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, वो तो दिया हुआ है ऑलरेडी। ये वाला, जो ये वाला है वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है 12। बाकी क्या बच गया? ये इसको, इसमें कितना लिखूं? 7 सेंटीमीटर 7 कैसे होगा? 7 कैसे होगा? इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ये जो मैं कलर कर रहा हूं, सर 6 सेंटीमीटर इसका 6 होगा। This is 5 sorry 5 Is length multiplied by width. yes 5 sir 5 multiplied by 1. So 5 multiplied by 1 is 5. So इसमें हम लिखेंगे 5, और जो ये बाकी का बच गया 6 multiplied by 2 is 12. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 17. चलो अब बताओ। ले सकते ये अब देखो आपको हिंट भी दिया हुआ है। अब माइनस दिया है, यानी कि टोटल अगर आप इसको पूरे को, अगर आप इस पूरे को एक रेक्टेंगल मान लो, सपोज यू थिंक दिस इज ए रेक्टेंगल, बड़ा वाला जो ये सारा है, ये पूरा रेक्टेंगल जो है इसका क्या होगा एरिया? 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज 54. अब इसमें से आपको यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ओनली ब्लू पोर्शन। दैट मीन्स ये जो व्हाइट है इसको आपने माइनस करना है, ये वाला। तो कितना माइनस करोगे? हाउ मच विल यू सबट्रैक्ट? बोलो विशाल, आप बताओ। सर 66 66 66 कैसे होगा? यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ब्लू वन। Sir, 4 into 3, 12, and 9 into 6, 54, and then we add it 66. बट व्हाई आर यू एडिंग? 54 कौन सा वाला है? यहाँ पे आपको ऐड कहाँ दिया है? यहाँ देखो ध्यान से, आपको 50 जो 9 into 6 है
वो कौन सा एरिया है? वो तो इस टोटल का एरिया है, टोटल का, इस पूरे का एरिया है. Sir, only 12. You have to find the area of blue portion. That means this ये जो बीच का ये व्हाइट वाला है, इसको आपको माइनस करना है. तो व्हाइट 12. वाले का एरिया, व्हाइट का एरिया 12 है. तो 54 में से 54 तो टोटल है, टोटल में से इतना एरिया आप माइनस करोगे. ये एरिया 12 है, तो 54 माइनस 12 कितना होगा? Sir, 42. हाँ, तो ये सोचना है ना, ये दिमाग लगाना है. यहाँ दिया हुआ है, देखो आपको लिखा भी है 54 माइनस 12. तो यहाँ पे आंसर विल बी 12 एंड 12 and this will be 42. तो ये आप ऐसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो. तो ऐसे ही आपको ये वाले क्वेश्चंस करने. 2.46, तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ये 2.46 करो, फिर 47 करो. तो भी मैं साइन करता हूं. ओ देखो कितने, 2.47. चलो 2.46 and try to do for 2.47. फिर अगर ये नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ये करो आप 2.4647. ट्राई 2.47. ठीक है. Okay, sir. Try this one and try to do this in your notebook. इसमें काफी सारी एक्सरसाइजेज हैं. चलो आज के लिए इतना काफी है. 2.47 की खुद प्रैक्टिस करना, और अगर कहीं समझ नहीं आए फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे 2.47. ओके. Yes, sir. चलो ओके देन, बाय Bye, sir. बाय, गुड नाइट. Bye, sir.